soon we are about to sign few celebrities with Godlike. क्या चल रहा है? रूडीज का ऑडिशन चल रहा है? क्या चल रहा है? वो मेरे अंदर से अभी वैसे हो रहा था, पता है क्या? तो एम्स्टरडैम में ही करने वाले हैं। एम्स्टरडैम और ब्रो, कुछ नहीं होगा। एम्स्टरडैम चलते हैं। Welcome to High Talks with Mujtaba Ahmed and Himanshu Gupta once more, once again. Actually, बहुत time बाद आ रहे हैं मुझ. But we're coming here with a banger. With a very special guest, guys. Yes. You're gonna like this one a lot. Yes, so guys, introducing Kamaljeet Singh, the driving force behind Godlike Esports. As the general manager of the company, he brings a wealth of experience and a true passion for the industry. Kamaljeet's journey in the esports world began as a manager for Entity Gaming and a consultant for Enigma Gaming India. He's a dedicated leader who always puts the needs of the players and fans first. His vision for the growth and development of the esports industry in India is unmatched, which has led Godlike Esports to be one of the most competitive and successful teams in India. With Kamaljeet leading the way, the future of esports in India is looking bright, isn't it, Mujh? Indeed. So welcome to High Talks, Kamaljeet. Thank you guys, thank you so much. Thank you for your very nice and beautiful introduction. I really loved it. देखो तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ. मुझे लगा था ज़्यादा सीरियस ना हो जाए, क्या बोलते हैं? नहीं, it was lovely. Thank you so much, guys. But yeah, man, you have been a big inspiration. हम काफी टाइम से follow कर रहे हैं, like with Godlike तो as soon as we decided कि okay, high tournaments बनाना है, we knew Godlike is something we need to look at. It's one of the first names that we came across, to be honest. Yeah, So, bro, we have been hearing about it since I was in college. So we're freshly graduated, by the way. Okay. Yeah. So since we were in college, we've been hearing about Godlike and finally getting on a call with someone who's managing the entire team and the org. It's insane. So Thank you, guys. Kamaji, just to start it off light, I would love if our viewers could know what inspired you to become the leader in the esports industry and what drives you to continue working in this field. Because I think that's something is the core reason, लोग connect कर पाएंगे अपने दिल से. So gaming has started off me as an addiction, okay, कि कुछ भी करो गेम्स खेल के बहुत मजा आता था. Especially I used to play Counter Strike. आपको लग रहा है कि मैं मेरे दोस्त लोग को हरा रहा हूँ. वो जो स्पार्क रहता है ना दोस्तों को हराना, बाद में टॉन्ट करना, वो चीज मेरे में ना हमेशा से रहा था. अभी भी मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ वैसे ही करता हूँ. एंड सेम चीज ये मेरी आदत कब बन गई कि मुझे ऐसा लगा कि इट्स हाई टाइम यार. आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बाय द वे. तो मेरे लगा नहीं यार कमल, आई हैव टू क्विट. मजा नहीं आ रहा है इस चीज में, मतलब किक नहीं बैठ रही है. सो गेमिंग में कुछ तो भी करते हैं, कुछ तो भी करना है, बट करना है something revolving around the gaming industry. So I started off working with I used to work as freelance. कोई इवेंट्स देख लिए, काफी इवेंट्स संभाल लिया, ऐसा धीरे धीरे काम सीख लिया. एंड फिर जैसे जैसे ये हो गया, फिर मैं बोला कि थोड़ा इसको प्रोफेशनल तरीके से करते. 2015-16 it started booming. Then there were many tournaments started happening. फिर मैं बोला कुछ सीखना है यार. Then I joined Platonia Esports. I joined the operation side. मैंने वहाँ पे प्रोडक्शन सीखा, ऑब्जर्विंग क्या होती है, सोशल मीडिया कैसे करना होता है, प्लेयर मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब चीजें सीखी मैंने. And during my reign in Platonia Esports, we hosted many major events. We hosted the very first PUBG Mobile event called Campus Championship. So it was like an event from the Tencent publishers itself, especially for the college students. So it was a pretty much boom event back then in 2018. फिर धीरे धीरे फिर हम लोग ने we expanded into Free Fire, कॉडम किया, फिर कॉलेज इवेंट्स किए लैंड पे जाके. वी होस्टेड द वेरी फर्स्ट सिमुलेटर रेसिंग कार इवेंट का हम लोग ने, गेमिंग का हम लोग ने इवेंट रखा. सो वहां से बोला कि यार कमल, तू हमेशा से कॉम्पिटिटिव प्लेयर भी रह चुका है, बट तेरे को वो तेरे में स्पार्क है, बट ये इवेंट्स वगैरह ना तेरे लिए बना नहीं है कमल. मेरे को फिर लगा कि लेकिन that's when I got an opportunity from Entity Gaming. They were looking out for another manager to to handle the mobile division. And yeah, so from there it's a very very booming history for me and the entire team. We have been
sticking with each other since then, and the same roster followed to Godlike, and तब से बहुत ही अच्छा चल रहा है. Yeah, एक चीज इतना है कि when I joined this side of the industry, like gaming organization, वो मेरे में जो competitive spirit है, even though I'm the manager, but वो रहता है ना कि तुम्हारा competitive spark अभी भी alive है. तो वो चीज हर एक इवेंट में, नो मैटर इररिस्पेक्टिव ऑफ द गेम, कौन सा भी मेरी गेम मेरे प्लेयर्स खेल रहे रहेंगे, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मेरे में अपने आप आ जाता है. फीफा वाले खेल रहे तो वो लग रहा है कि मैं फीफा खेल रहा हूँ, बीजेएमआई वाले खेल रहे हैं तो लग रहा है मैं बीजेएमआई खेल रहा हूँ. वो रश है ना अंदर का, वो भूख मेरी मिट नहीं रही है. सो ये लाइक ये भूख तभी मिटेगी व्हेन वी लुक लाइक वी अचीव समथिंग एट एन इंटरनेशनल स्टेज. तब जाके ये भूख रुकने वाली मेरे और मेरे प्लेयर्स की. सो ये चीज अभी चलती रहेगी, देखते कब तक चलेगा. अरे ब्रो, लव इट ब्रो. लाइक ये भूख तो हमेशा चालू रहनी चाहिए. इसी की वजह से तो अपन सब लोग ड्राइव कर रहे हैं. मुझे तो आई स्टार्ट विद कॉड मोबाइल. सो पहले कोविड में लाइक दैट टाइम सब लोग घर पे बैठे हुए हैं, चलो कॉड मोबाइल खेलता है. दैट वाज मोर ऑफ अ गेम इन दुबई दैट वाज बूमिंग. पबजी इन लोग का थोड़ा कम था. सो थोड़ा कम था. वी स्टार्टेड, हाँ वी स्टार्टेड. And we all can agree on the same page, I guess, कि COVID helped us a lot for booming the gaming industry. 100%. It was a 100% boom for win-win situation for actually all the gamers and in esports Yeah. industry. Especially mobile gamers more than anything. Yeah. Because everyone's stuck at home. People don't have systems necessarily. Very I few still people have- remember कि मेरे गांव में, मतलब my native place, मेरी भाभी लोग अपने बच्चों को बोलते भाई तू घर के बाहर मत जा, तू फोन लेके गेम खेलते रह. like they knew कि मैं गेमिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और एक टाइम तक मुझे टॉन्ट्स आते थे. एंड एक टाइम ऐसा था कि लाइक भाई छोटे तू ये फोन लेके तू गेम खेल, तू बाहर नहीं जाना. तो ये मेरे को बहुत ही आयरनी लगा, अभी भी सोच के हंसने आता है मेरे को. बट या इट वाज अ गुड थिंग फॉर गेमिंग इंडस्ट्री. No, for sure, yeah. COVID, I think COVID is the thing that made it. Like obviously PUBG ने वो start कर दिया था, but COVID like defined it कि वो Among Us आया, वो Free Fire, COD Mobile आया. Among Us ने तो क्या फोड़ा है मैं जानता भी नहीं कहाँ से. बहुत ज्यादा फोड़ दिया यार उसने भी. अभी तक चल रहा है, अभी भी स्ट्रीम्स चल रहे हैं उनके काफी. Yes. बट लाइक मोस्टली इन यूके ना. अभी मैंने इतना इंडिया में Among Us का इतना देखा नहीं मैंने. See, इंडिया में Among Us तभी खेल सकते हैं when you have like set of friends, set of streamers. इंडिया में अभी ज्यादा लोग इतने बिजी हो चुके कि Among Us को भूल चुके, उनको सिर्फ अभी गेमिंग में सिर्फ गिने चुने गेम्स दिख रहे. वो लाइमलाइट Among Us हट चुका है. बट आई एम प्रीटी श्योर लाइक currently all the streamers वो कभी-कभी हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार तो ट्राई करते हैं टू एंटरटेन द इंडस्ट्री. अपने फैंस को, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी गेम है वो. See, continuing from this, like Kamaljeet, obviously a lot of games have been getting banned here and there. उस पे आपका क्या take है? Like that is something that has been concerning like everyone, right? Like even us as people who started the company around the fact that like games boom कर रहे थे. We saw the esports industry rising in India. We are founders from Dubai, but we are like नहीं India चालू करना है, क्योंकि एक तो वो patriotic थोड़ा सा feeling आता है कि मेरा भारत महान. एंड फिर दूसरा था कि लाइक मास है अपन के पास, वहां पर क्वांटिटी है. बट अब जब बैन हो रहा है तब सबकी थोड़ी सी तो हवा टाइट है. सो हाउ आर यू गाइस कोपिंग अप विद इट? लाइक व्हाट आर यू गाइस डूइंग लाइक टू मेक इट अप? सी, जस्ट ए स्मॉल फॉलो अप फ्रॉम माय एंड. हमारी हवा थोड़ी ज्यादा फटी पड़ी है बिकॉज या एक्चुअली सबकी फटी पड़ी है. वी ऑल कैन लाइक एग्री PUBG, BGMI, it's a boom for Indian esports. एंड अभी बैक टू बैक 2 गेम्स, मेजर गेम्स बैन हो चुके हैं. फ्री फायर ऑडियंस भी बहुत ज्यादा मास उसमें भी है. एवरी पर्सन जिसके पास फोन है, स्टार्टिंग विद द एज ऑफ 13 to 17 till 25, उसके फोन में या तो PUBG होगा, या तो मतलब BGMI होगा, या तो फिर फ्री फायर होना ही था. एंड दोनों गेम्स बैन हो चुके. बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि गेम्स क्यों बैन हुए. if anything is against Indian law के against है, या फिर data discrepancy जो भी सीन है, if it's hampering Indian security, so हमें हाथ जोड़ के उस चीज का respect करना चाहिए. Yeah, but at the same time business point of view, like again जैसे गवर्नमेंट के आगे बैठ के एक कॉमन ग्राउंड पे सॉल्यूशन निकाल के कर सकते यार. ये गेम के बैन करने के करके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी है. हम ग्लोबल चार्ट्स में आ रहे थे, बिजनेस बहुत ज्यादा आ रहे थे. हम और आप जैसे जो कि स्पेशली मोबाइल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक
हमारा बिजनेस मेजर वहीं से आ सकता है, रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो सकता है। तो वही है कि अभी वो चीज हमें समझाना पड़ेगा, एंड आई गेस द प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड आगे की लीक्स तो मेरे पास भी नहीं है कि मैं क्या ही बोल दूं, नहीं बट अंडरस्टैंडेबल यार। या बैन का इट हैज अफेक्टेड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस तो बंद भी हो गए। तो मुझे बुरा लगता है कि लाइक कहीं ना कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है, भले ही गॉड लाइक का इसमें कुछ फायदा नहीं है, बट गॉड लाइक का इसमें नुकसान जरूर है, बिकॉज कंपटीशन ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, फंड्स के Correct. करके तो कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, But बिकॉज अभी क्या ही Kamaljeet, who do you think it affects more, the players or the organizations? Who do you think actually, gets the short I, end of the stick here? I'll say 60% the organization and 40%, not 60, 70, 30, 70 towards the Hmm. Okay. organization, because they invest heavily. Salaries se leke, like, the operation cost and bearing all the expenditures, like, वो लोग एक साल तक का वो लोग, they have already plans बनाए हुए रहते थे. Not sure Correct. about other organization, but हमारा ऐसा ही था कि हम लोग एक साल पहले के आगे के हम लोग ने सोच के रखा था कि ये हमारा फंड्स यहाँ है जाएगा, तो वैसा हम लोग ने इन्वेस्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ था. Like, we have this entire boot camp, it's a very expensive, there is a hefty amount for the operation cost. ये So it's चीज hard हम to लोग ने, reallocate yeah, because all and contracts already written yes, prior. and Mm. and हम लोग के लिए, प्लेयर्स लोग के लिए इतना क्यों, हमारे, आई टॉक ऑन आवर बिहाफ, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर्स के बिहाफ पे नहीं बोलूंगा. प्लेयर्स का आई एम सेइंग 30% इज बिकॉज वी कैन स्टिल अफोर्ड टू गिव देम सैलरीज. हमारे पास फंड्स है, वी कैन स्टिल बर्न देम, हम उनको सैलरीज दे सकते हैं. एंड वेयरएज उनके, हमारे प्लेयर्स लोग के पास नंबर्स भी है, सो उनके पास ब्रांड डील्स कैसे ना कैसे आती रहती, सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फ्लो गोइंग ऑन फॉर देम. कुछ ना कुछ तो उनके लिए रेवेन्यू आ रहा है, घर पे एक इनकम बता सकते हैं, बट यही चीज आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास देखिए जिनके प्लेयर्स के पास नंबर्स नहीं है, वो वहां पे रुक चुके हैं, एंड आई फील बैड फॉर देम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट्स, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उस चीज में. वी कैन जस्ट लाइक एम्पैथी दे सकते हैं यार, अभी क्या कर सकते हैं अभी. Yeah, you just have to ride या the wave. बट ऑर्गेनाइजेशन बेयर्स अ लॉट ऑफ अमाउंट, बहुत ज्यादा है, एंड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी होता है कि नंबर्स वगैरह आते हैं गेम से, बट एट द सेम टाइम दे डू हैव बैकअप प्लान, उनको बैकअप प्लान्स पे भी काम कर देना शुरू कर देना चाहिए. सो जस्ट अ सजेशन फॉर यू गाइस. नहीं bro, as soon as we heard it, हमारा base, our parent company was in Dubai. We diversified. We made sure we had the capabilities for PC games as well, for console games, like just to be sure, just to be safe. हमने तो शिफ्ट करने के लिए हम पहले से रेडी थे somehow. हमें लग रहा था कि होने वाला है, कभी ना कभी तो होगा यार, क्योंकि once we saw, एग्जैक्टली, क्योंकि एक बार गेम बैन हो गया, वी कैन अंडरस्टैंड, दूसरी बार वापस से गेम, something is And serious. that too, the big games, right? अगर कोई छोटा Exactly. मोटा game हो तो you can understand, but the big games that have बीजीएमआई बैन हुई, millions of millions. या बीजीएमआई सेम रीजन के बैन हुई, समझ गए. फ्री फायर बैन हुई, और उसका क्या प्रोसेस चल रहा है आने का, वो तो किसी को पता भी नहीं है. No clarity At least at all. BGMI officials had the credibility to explain कि we are working with the government, but फ्री फायर वालों ने भाई वो तो हाथ ऐसा छोड़ के चले गए, समझ ही नहीं आ रहा. देखो फ्री फायर का क्या है ना कि आई गेस लाइक इंडिया में काफी मास था, बट इट्स ओरिजिनली अ बिग सीन इन ब्राजील एंड लाइक अमेरिका साइड. Yes. सो वहां पर दे वर लाइक ठीक है, अब फालतू में क्या लड़ना, सबको बैन कर रहे हैं कंट्री, निकलो यहाँ से. दे स्पॉन्सर्ड दिस थिंग ब्राजील्स फुटबॉल टीम. सो या दे वर वेरी बिग. Yes. फ्री फायर बहुत बड़ा हुआ है यार. फ्री फायर ना, उन्होंने कितने किससे कौन से बड़े बड़े फुटबॉलर्स को लिया हुआ है, आर्टिस्ट लोग को लिया हुआ है. ये चीज बहुत अच्छा किया उन्होंने एज पब्लिशर्स, बट यार इंडिया को भी लेके आओ थोड़ा लाइमलाइट पे. सोचो इंडिया में गेम कैसी ले, वी हैव लाइक बिग टैलेंट्स यार. टोटल गेमिंग है, कितने बड़े बड़े फ्री फायर के क्रिएटर्स है जो लाइक अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे. आई गेस बाय फार द बिगेस्ट यूट्यूब गेमिंग क्रिएटर हु कैन रिप्रेजेंट इंडिया इज डेफिनेटली टोटल गेमिंग. अज्जू भाई. अज्जू भाई 32 मिलियन 32 मिलियन की उसकी सब्सक्राइबर बेस है यार. कुछ तो लिहाज करो. Yeah. इट्स मैड एक्चुअली. कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो सोच लो यार. इनका भी जल्दी से गेम आ जाए यार, उनका भी ई स्पोर्ट सीन पे. हम तो ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ई स्पोर्ट का सीन हम बड़ा कर देंगे मिलके सब लोग. वो तो बात है आप और मेरे जैसे लोग बड़ा कर देंगे.
No, but it's very disappointing to see like Free Fire go. मेरी काफी conspiracies भी थी जो मैं introduce नहीं करूंगा अभी क्योंकि अपन का conversation बहुत अलग line में चल जाएगा. But वो कभी ठीक बात है, करेंगे अपन उसके बारे में. मुझ? जरूर. Yeah. So, Kamaljeet, you mentioned, that the roster is really big, that it's across multiple teams. But how do you focus on maintaining the talent, right? We see a lot of other really large esports organizations. So why do people stay at Godlike? Why are they enjoying this? And what do you do for the guys that make them love the organization so much? ये थोड़ा कंट्रोवर्सी कर सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ इस चीज अरे पे. करो ना. नहीं नहीं हमारा क्लिकबेट बन रहा है कोई नहीं. नहीं नहीं, मुन्नी तो यूं ही बदनाम है, ऐसा नहीं है. सो द थिंग इज, सी एवरी ई स्पोर्ट्स प्लेयर और कंटेंट क्रिएटर जिसको भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता है, लाइक दे हैव बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स, दैट इज डिवाइस हो गया या पीसीज हो गए, गेमिंग गैजेट्स, एक फिक्स इनकम हो गई जो कि टाइम पे आती है, एंड ए बूट कैंप. ये एक बहुत ही बेसिक है जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं हमारे हर एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए. इसके अलावा व्हाट मैटर्स इज हाउ लाइवली एनवायरनमेंट यू क्रिएट फॉर एवरीवन. यू नीड टू ट्रीट देम इक्वली. ऐसा नहीं है कि अभी फॉर एग्जांपल हमारा एक बड़ा प्लेयर है तो हमारे एक छोटे नंबर वाले प्लेयर को हम इसको ज्यादा स्पेशलिटी देंगे, स्पेशल फील कराएंगे, और दूसरे वाले को हम नहीं देंगे. लाइक यू नीड टू ट्रीट देम इक्वल. एक अगर एक गॉड वाला अगर जॉनथन है ना, तो मेरे लिए ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है. गॉड के लिए ये भी एक वैल्यूबल एसेट है. सो यही चीज हमारे लिए, एंड वी हैव बीन वेरी मच रियल, कि जो हम लोग मुंह पे बोलते हैं वो उनके सामने उनको जता देते हैं. वी हैव ए पॉलिसी जहाँ वी बिलीव इन लाइक ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन. Very जो good. भी हो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो, ताकि कुछ भी डाउट्स हो वो सीधा क्लियर हो जाए, एंड लाइक उनके मन में शक, दुविधा, जो भी बोल लो, वो कभी अराइज ना हो, कि मतलब कि प्रॉब्लम ना हो. दूसरी चीज ऑब्वियसली यार, पैसा हर एक के लिए मोटिवेशन है. लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, पैसा हर एक के That's लिए true. मोटिवेशन है. अगर वो टाइम पे आए तो मोटिवेशन डबल होता है. Correct. सीधी बात है. मेरे हम्म. को भी जब मेरी सैलरी टाइम पे आती है तो मुझे डबल मोटिवेशन मिलता है. सिंपल सी बात है, मैं मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ. तो आई समवेयर डाउन द लाइन एवरीवन कैन अलाइन ऑन दिस कि पैसा आ रहा है, टाइम टू टाइम आ रहा है. सो एक बहुत ही अच्छी बात है, लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी मच स्टेबल. एंड फिर ऑडियंस को भी दिखता है कि यार इनका फोकस इज वेरी क्लियर. हमारा प्राइमरी फोकस वाज ऑलवेज ई स्पोर्ट्स. हमें ई स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ करना ही है, बिकॉज वी हैव द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. सो इसके लिए every individual, every youngsters who wants to enter esports, वो मैसेज करता ही है उसको. उसके लिए godlike is the first priority, with all due respect to other organization, but godlike उनके लिए priority है. सिंपल सी बात है. 100%. And I see a lot of fans जो हमारे बूट कैंप के बाहर आए रहते हैं. कोई इतना दूर से आया है, कोई एक बार तो राजस्थान से आया है, कोई 2 घंटे ट्रैवल करके आया है, कोई एक कुछ चीज स्पेशल आर्टवर्क बना के लेके आया, किसी ने अपना रिज्यूम भेजा हुआ है मेरे को. लाइक आई कीप गेटिंग सच, एंड मेरे को बहुत बुरा लगता है कि लाइक दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपने ग्रेजुएशन की है आईटी, बीएससी आईटी या इंजीनियरिंग की है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, आपको जॉब चाहिए. आप ये सब थोड़ी ना करोगे अमेजोन में जाके, कि आपको Correct. अमेजोन में ज्वाइन करना है, करना है, दैट्स योर ड्रीम डेस्टिनेशन है, गूगल जाना है. आप गूगल के ऑफिस के बाहर जाके ये तो नहीं बोलेगे यार मुझे जॉब दो यार, मैं मेरे पेरेंट्स को Correct. प्राउड फील कराना चाहता हूँ. लाइक दैट्स नॉट द एक्चुअल वे. एक हायरार्की होती है फॉलो करने के लिए. सेम ई स्पोर्ट्स में आने के लिए यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ. currently, to be very honest, we are at a stage where we don't have time to watch all this. हमारे पास टाइम नहीं उनके रिज्यूम्स वगैरह देखने के लिए, या कोई अपना गेम प्ले वीडियो देखता रहेगा. हमारे पास वो भी टाइम नहीं है देखने के लिए, क्योंकि सब लोग अपना बेस्ट ही भेजेंगे, कोई अपना गलत Correct. साइड तो भेजेगा नहीं. Mm. सो या 100%. लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक अगेन. सो या तो यही है कि टीम को हम लोग लाइवली फील कराते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स है यार. like Cronton, he is one of the sweetest person I've come across. वो ऐसा ओनर लगता ही नहीं है. like he is, although he is younger to me, मेरे छोटे भाई जैसा, like मुझे बड़ा भाई मानता है, and उसका छोटा भाई भी, like it's the godlike is run by a family, okay, the same family. and वो like एक बार मेरे को उसके छोटा भाई है अमर करके, so उन्होंने मेरे को दिवाली पे विश किया, and like obviously he's my boss. Yeah. He's younger to me, but he's my boss. तो Hmm. उसने ऐसा बोला कि ऐसा ही आपका छत्र छाया मुझे हमारे पर बनाए रखना, लाइक वी नीड योर ब्लेसिंग्स टू रन द बिजनेस.
like I felt special, yaar. Obviously, yaar, he is my boss, but he is asking me for blessings. It made me feel special. And जो भी सेलिब्रेशन होती है, like हम लोग साथ में करते हैं यार, गणपति से लेके कोई भी मेजर फेस्टिवल आ जाए, दिवाली, सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं, को मजा आता है यार. So it's a family at the end of the day. Yeah, so we are very much following Indian traditions. तो वो जो ट्रेडिशन टच होता है एक बिटवीन द ऑडियंस, वो ऑडियंस भी कनेक्ट कर लेती है यार, यहाँ जाना है, इनके साथ बैठना है. नहीं, 100% यार, रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, like रिस्पेक्ट इज गिव एंड टेक, राइट? इट्स बोथ द वेज, और वो दिख रहा है. वो भी जानते हैं कि where you are providing value to God, and you also know where they come from. So दोनों साइड पे है. And यही एक, just to add on this, whenever we travel for any tournament, पब्लिक को ऐसा लगता है कि ना हम लोग में बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा वगैरह वगैरह, ऐसा लगता है. अरे क्या, which is to an extent fine. अरे इतना ठीक है यार, उनको लगता है कि बड़े लोग हैं, एक हद तक उनका सोचनी, बट ठीक है. बट जैसे हम लोग यहाँ बात करना चालू होते हैं ना, वो लोग सीधा बोलते हैं, अरे यार पाजी यार, हमें लगा था आप ऐसे बात करते हो, जॉनथन ऐसा होगा, हमें लगा आप तो बात ही नहीं करोगे. और जब हमारी मस्तियां चालू होती है, फिर वो लोग बोलते हैं, भाई बहुत बहुत हो गई मस्ती, यहाँ तक रुक जा अभी, मतलब थोड़ा 18+ तक चले जाता है हम लोग का. ठीक है, वो मस्ती मजाक, हम लोग जो दिल के हैं हम लोग वो पोर्ट्रे कर देते हैं सामने, हम लोग भी वैसे भी रहेंगे, तो हमारे से ज्यादा कनेक्ट कर लेते लोग. नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि मतलब जो साई फैमिली भी है ना, बस लॉन्डे है, सब एक साथ में चिल करते हैं, अपन का लॉन्डो वाला प्यार है, सबको भाई भाई बोलना है और चलाते जाना है. बिल्कुल. I love it, man. I had one more cute ass question, Jonathan. So sir, obviously you have a lot of you must have faced a lot of challenges. You must have seen a lot in your life as being in esports. So I would love to know अगर कोई एक तो funny incident हो जाए, क्योंकि उसका मैं एक अच्छा सा क्लिप बना के डालेगा, है ना? And I would like to know the biggest challenge you have faced. वो थोड़ा सीरियस वाला, वो वाला भी क्लिप डालूंगा मैं. Okay. Yeah. So funny challenge. चैलेंज कोई इंसिडेंट ही बता दो, कोई नहीं. Incident, I'll share few incidents. Yeah. जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम लोग चैलेंज तो नहीं बोलूंगा, ये एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे रिसेंटली वी ट्रैवल्ड स्टार स्पोर्ट्स BGMS टूर्नामेंट हुआ. मैं टूर्नामेंट का नाम ही भूल गया शायद, ठीक है, हुआ था जो भी स्टार्टस वाला. एंड वहां पे इट वाज ए वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन वाला इवेंट. हर एक हम लोग सारे बायो बबल में थे, होटल में रह रहे थे, एंड इवेंट में पूरा टाइम सोल गॉड लाइक, सोल गॉड लाइक, सोल गॉड लाइक, यही चल रहा था. यहाँ से टॉन्ट्स आ रहे, वहां से टॉन्ट्स आ रहे, लोग एंटरटेन हो रहे, वीडियोस आ रहे, उस चीज के बाहर हो रहे, एक दूसरे को ऐसा इशारे कर रहे, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था. एंड कहीं ना कहीं उस चीज का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया. आई डोंट वांट टू नेम देम, बट इतना है कि ठीक ठीक है इस चीज में, क्योंकि ऑब्वियसली जब दो लड़ाई करते तीसरा बंदा फायदा उठाने का कोशिश करेगा. दैट्स हाउ ह्यूमन नेचर इज. ठीक है, वो चीज का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया भी है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अगेन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी हैड रियल फन विद दैट बैंटर. बहुत ही ज्यादा मजा आया था. एंड kudos टू द बॉयज एट सोल आल्सो, उन्होंने हेल्प किया हम लोगों की टू ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम अस, बिकॉज उसके पहले हमारा बहुत ही ज्यादा मेजर डाउनफॉल चल रहा था. सो अगेन द बैड इंसिडेंट वुड बी व्हेन वी गॉट आउट ऑफ द BMPS. तो देयर वाज अ पॉइंट कि रोस्टर शफल वाज वेरी मच एविडेंट. हम लोगों ने XYZ एक पर्सन को बोल दिया था कि भाई तेरा टाटा बाय बाय है अभी, we have given enough time, but there is no improvement. We are unable to qualify for a event life में पहली बार. So वो एक चीज आया था, but as soon as this tournament we got our performance back and start थोड़ा हमारा एकदम सूदिंग टाइप हुआ था, एकदम प्यारा वाला, मुश्किल से क्वालिफाई हुए. फिर एंड ऑफ द डे हम लोग जीतते जीतते रह गए. दैट स्वीट टेस्ट इतने से रह गया, हमारा 4 पॉइंट से रह गया. And I felt really bad, but when I saw my boys crying, तो मुझे भी, I'm an emotional person with my team, तो मेरे को भी थोड़ा बहुत लगा, but end of the day मैं बच गया. टीवी पे मेरे आंसू नहीं दिख सकते थे, दिखाने नहीं थे. I had to be the strong guy. So yeah, Yes, तो बच्चों को संभालना था.
तो yeah, that was a very nice, and again वो जो सोल और गॉडलाइक की राइवलरी थी, बहुत ही ज्यादा मजा आया. That was recently है, इसके लिए I'm cherishing that नहीं memory. नहीं कोई नहीं. No bro, we have been hearing about Soul and God like ये तो बहुत टाइम से चल रहा है अब तो. इसके तो Yes. हम भी मजे लेते हैं, बड़ा मजा आता है कि ठीक है हो रहा है कुछ ना कुछ. सारे मजे लेते हैं. मतलब अपन के ई स्पोर्ट्स में इंडस्ट्री में कुछ मजे हो रहे हैं तो वहीं पे हो रहे हैं. वो जो दो ग्रुप बिल्कुल बने हुए बिल्कुल. हैं और जो और क्या हम नहीं बोलते देंगे ये एंटरटेनमेंट ऑडियंस को, कौन दे हैं, भी नहीं पाएगा, हाँ, दे भी नहीं पाएगा कोई. वो जो कट्टरता होती है ना, कट्टरता इज द राइट वर्ड नहीं, वो जो लव होता है जिससे आप मतलब वो एक फैन का लव और फिर दूसरे शौक फैन को होता कुछ बोलता है उसमें असली मजा आता है. हाँ, ये आई चीज लव तो इट. मजा आता है, मजा आता है. एंड वी एक्चुअली रियली विश ये सब इवेंट अगर ऑडियंस भी होती देखने के लिए, लाइव ऑडियंस, तो और ही ज्यादा मजा Oh आता. yeah, that would be different. वो That'd be a क्रेजी different फीलिंग game. आती थी, बहुत ही ज्यादा क्रेजी फीलिंग आती. No, we need some events like how they're happening in US यार. मतलब we want a face clan of India. वो देखना है और I हाँ think यार. Godlike is the only one that can do it. लेकिन वो कर सकते हैं यार. Yes. We have the potential and caliber. We Indeed, can do indeed. that. Like whoever, like I told a couple of my friends ki like we're getting in touch with someone from Godlike, Kamaljeet, and obviously Dubai में जो लोग यहाँ पर brought up होते हैं, they don't know much about Indian esports scenario क्योंकि मतलब I उनको understand. खेलना है जो भी है, but हाँ. then I tell them कि bro they're the face clan of India. That's when they can connect क्योंकि face clan सुना है सबने, फेस but प्लान बहुत ही Godlike नहीं. ज्यादा है यार. IPO निकाल दिया हो उनने. जाएगा, हो जाएगा, अभी गॉडलाइक भी हो जाएगा. Arey. No, I'm waiting for that. By the way, what do you think is missing in between, like, reaching that face clan position? Like, क्या missing Okay, है अभी? so I'll be brutally honest here. Hmm. Uh, Face Clan has, like, content बहुत ज्यादा उनका content Correct. oriented है. Hmm. At the same time उनका कभी starting, they started off with COD scene, जो कि COD scenes बहुत, Correct. Yeah, the entire the sniper NA region montages. is made for that. And Yeah. उन्होंने अपने आप को develop किया as a, like, FaZe. I still follow FaZe Rag. Hmm. मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ FaZe Clan के members को भी. And then to be very honest, they are very much inspired. I get inspired from them. And वो चीज हमारे में जो lack करती है, which is content side, to be Okay. honest. Is this And content on in terms of people streaming, or is it just content in terms of videos? both, Because they make a lot of both, video content. both. Just See, Mm. India में streaming is a plus point for you to gain numbers if you are regular. Like we have Lols, he streams twice a day on YouTube, and currently the watching he is able to achieve कोई और कर नहीं पा रहा है, like after Jonathan. So Okay. बहुत अच्छे numbers लेके आ पा रहा है. He is regular because. तो इंडिया में स्ट्रीमिंग से आप कंटेंट की बात की जाए तो इट कैन बी एनी कंटेंट, लाइक जो आपकी ऑडियंस को पसंद आता हो, कुछ भी कंटेंट हो, जो बकचोदी कर दो, गालियां गालियां थोड़ा अवॉइड ही कर दो. या So, प्लीज प्लीज आप कुछ पूछ so, रहे so, so this is what you're saying is even non-gaming related content, थे. right? नॉन गेमिंग रिलेटेड कंटेंट. Because that's And something we haven't seen much of. So we see a lot of gaming. yes, Sure, not a lot of people stream, but a lot of people post clips. But when it comes to that, let's say that YouTube type of content, that AIB type of content, or maybe AIB is a bit extreme, वो but ज्यादा हो जाएगा अभी. वो थोड़ा, but that type of content, those type of skits, we don't see that enough. so yeah, in short, non-endemic content which is not only related to gaming, वो आपको कंटेंट भी लेके आना पड़ेगा. And thankful, like Soul guys, SCDL achieved, like the award at global stage. Yeah. And वो बहुत ही अच्छी चीज, because they have been regular in their content and उनकी audience को पसंद आता है. And they are trying to experiment on a daily basis. जब भी उनके नए वीडियो आता है, you can see something or the new is coming, which we have lacked. So 2023 will be definitely an eye-opening lesson for us. Like, let's shift our focus on content also, because key content is, like, आपको hand in hand एक organization रहेगा. आपका esports है तो content भी ऐसा होगा फिर. Like we'll have two major pillars for an organization. And FaZe Clan में ऐसा भी है, if you have noticed, वहाँ पे सिर्फ gaming creators नहीं है. There is Wow. Snoop Dogg.
Hmm. There is Yeah. Snoop Dogg. There are NFL players. ठीक है? Celebrities. Soccer players, celebrities. Yeah. So just a leak from our end. Soon we are about to sign few celebrities with Godlike. Oh. We have already announced long time back Rahul Tevatia, the winner of IPL Mhm. Okay. 2022. Yeah. So he is a part of Godlike as an influencer. Certainly, we'll be adding few more names to the list, and let's see how things work out on our favor or no. Time will tell, but opportunity has struck for us, so we're gonna grab this. And 2023 हमारा content भी बहुत अच्छा आएगा, इतना मैं surety दे सकता हूँ. So you देखो can यार. say जो हमारे में missing था, we're gonna Hmm. keep cope up with that. वो हम लोग चीज cover करेंगे अभी. No, love it, man. I'm looking forward to seeing what kind of this thing, like, influences you bring on as like brand ambassadors, pretty much. I think Yes. India में अगर आप क्रिकेटर उठा रहे हो या कोई बॉलीवुड से उठा रहे हो, चलने वाला है. और क्या चाहिए? But I Let's want not to. limit ourselves. Let's not हाँ. limit ourselves. It can be anybody who is famous. अरे वो Anybody who बात is तो सही famous. है. Well, that's very true. I want, like, gaming gaming creators to come to the point कि, like, जैसे अभी like काफी comedians हैं इंडिया में who started off and they are joining the Bollywood realms, like, Anubhav Yes. Singh, Bassi, Bhuvan Bam, Bassi. these guys, they're joining it, they're doing really well. Yes. So I want our Mostly gaming sane. creators. Mhm. Yes, so that's what I want them to. I want our gaming guys to go up. I think the only thing missing is कि वो personality obviously stream में दिखती है, but the audience wants a little bit more. वो थोड़ा सा चाहिए थोड़ा सा उनको. तड़का चाहिए उन्हें ना कि ये और क्या क्या कर सकता है. और तड़का यूएस में काफी अच्छे से मिल जाता है. Yes, बहुत इजीली मिल जाता है. यहाँ हाँ. बनाने पड़ते हैं तड़के. हाँ. यहाँ पर अपन काफी तड़कों की बात नहीं कर पा रहे पर सब समझ रहे हैं कि हाँ हमने मेरे अंदर से अभी वैसे हो रहा था, पता है क्या कि ये मेरे मुंह से आएगा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बहुत. कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे. मैं फिल्टर मोड में हूँ. नहीं bro, 100%, but I think Godlike is the only one who can reach it. Like Soul का भी I see the way they're going. I think Godlike में वो अलग से दिल से प्यार है, कुछ connection है मेरा खुद का कि I'm like हाँ you guys can be the next Face Clan. Thank you very much. So, final question for this podcast. Yes. Right? Yes, please. So, Kamaljeet, you spoke about the fact that, when people are applying to Godlike, these guys aren't coming with a resume. So, how would you suggest these folks to build up their resume? Whether they are creators, whether they are someone who wants to eventually make an esports organization of their own, would you advise them to take the similar path that you took, or having taken that path yourself, would you advise them to do something differently? What's your Okay. opinion on that? So when I joined, it was an opportunity, okay, and वो time पे opportunity and paths कुछ नहीं हुआ करते थे ज़्यादा. I was pretty much experienced in my scene. That's why the opportunity came calling my name. Okay. So now we have a path. There is a hierarchy you need to follow. For example, if you want to enter esports, every basic question यार मेरे को ये ना मैं irritate हो चुका हूँ कि esports कैसे enter करते हैं. भाई esports enter करने वाली चीज नहीं है. Esports is only about playing tournaments. आपको tournaments खेलना है. Tournaments में आपका नाम बनाना है. Make a name out of yourself. ताकि आप रिकॉग्निशन में आओ यार, लाइमलाइट पे आओ, ताकि बड़े ऑर्ग्स भी देखे आपको. अगर बड़ी ऑर्ग्स नहीं देख रही, आप अपने आप को बड़ा बनाओ. कैसे? जीत के. यही एक सिंपल सॉल्यूशन है फॉर एन ई-स्पोर्ट्स एथलीट. अभी मेरे को ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते, अरे यार मैं अकेला बहुत अच्छा खेलता बट मेरी टीम नहीं अच्छी खेलती है. दैट्स योर प्रॉब्लम. हमारे प्रॉब्लम नहीं है. मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं या तेरे लिए 3 बंदे ढूंढते बैठूं. यू नीड टू फाइंड 3 guys जो तेरे साथ बैठ सके, तेरी सिनर्जी जिसका तू जीत सकता है. एंड वो तेरा लुकआउट है कि कैसे करना. अगर नहीं तेरे 3 लोग मिल रहे, द सर्च इज स्टिल ऑन. तेरे को वो हंट करना पड़ेगा फॉर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर. फॉर कंटेंट साइड, मेक श्योर आप जो भी कंटेंट कर रहे हो, सबसे बेसिक थिंग विल बी कि आपका कंटेंट यूनिक हो, फनी हो, एंटरटेनिंग हो, फिर कनेक्टिंग भी हो. ये 4 चीजों पे अगर आपका कंटेंट चल रहा है तो डेफिनेटली. एंड 5th, पेशेंस. सबसे बड़ा पेशेंस. आपको 1 साल तक कोई नहीं देखेगा, समझ लिया यार, बट आपको कभी ना कभी कोई तो देखेगा. यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको हेल्प करेगा, कभी ना कभी करेगा.
सो पेशेंस आपको रख के आपके कंटेंट पे ध्यान देना ही देना है कैसे भी करके। ये तो कंटेंट वालों की भी बात होगी। लाइक इफ यू वांट टू एंटर दिस साइड ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे मैं हूँ मैनेजमेंट साइड, Correct. देयर आर वेरियस पोजीशंस। सोशल मीडिया है, आपके पास कंटेंट आइडिएशंस के लिए है, ग्राफिक आर्टिस्ट है, एडिटर्स है, लाइक यू नो ऑपरेशंस वाले बंदे हैं, कोचेस है, एनालिस्ट है, फिर ऑब्वियसली सीईओ वगैरह के लिए आपके पास जेब बड़ी चाहिए आपको। आपको फाउंडर बनना तो जेब बहुत बड़ी चाहिए आपको। यू नो ऐसे बहुत सारे पोजीशंस अवेलेबल है। जब भी कोई एक ओपनिंग आती है, इट्स ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पब्लिक में बताए कि हमारे यहाँ पे ओपनिंग आई है, वी हैव अ वैकेंसी, इफ एनीवन वांट्स टू अप्लाई काइंडली सेंड योर रिज्यूम्स हियर। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग ने अभी भी रिसेंटली हायर 2 ग्राफिक आर्टिस्ट, एंड हम लोग को एप्लीकेशंस आए कुछ 1200 समथिंग उसके ऊपर आए, लेजिट लेजिट। एंड हम लोग ने एक फॉर्म भरने बोला था। फॉर्म में ऐसा था कि लाइक यू नो वी हैड ऑप्शंस कि आप एडिटिंग कैसे करते हो, डू यू यूज योर फोन या लैपटॉप पीसी जो भी है। जिन्होंने फोन्स यूज किया ना, मैंने उनको सीधा रिजेक्ट किया। मुझे फोन वाले एडिटर्स नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ ये जानना था, क्योंकि मेरे लिए इजी हो गया उनको रिजेक्ट करने का, मेरे को एक रीजन मिल चुका है। सही बात विद है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू उनको जिनको भी रिजेक्ट किया है, ये उनके लिए एक लेसन होगा कि लाइक यू नो अगर आपको प्रोफेशन में जाना है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हो। आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हो। फिर हम लोग ने जितने भी लोग को शॉर्टलिस्ट किया, हम लोग ने हर एक एप्लीकेशन देखा। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, हम लोग ने हर एक एप्लीकेशन देखी है। हर एक ने जो एप्लीकेशन ने अपना काम दिया हुआ है, वो हम लोग ने एक एक चीज खोल के देखा है। ड्राइव लिंक्स दी हमें, हम लोग ने एक एक चीज खोल के देखी। हम लोग ने 3 लोगों ने मिलके खोल के देखा है सब लोग ने। स्पेशली द बाबा हु मैनेजेस दिस, उसने हर एक एप्लीकेशन बोला कि पाजी मैं सबका मैं देख के रहूंगा, क्या पता कोई एक खोटा सिक्का है जो हमारे लिए चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का बन जाए। ये उसका डायलॉग था। उसने हर इतनी मेहनत की बिकॉज ही लव्स एनिमेशन। उसने अभी रिसेंटली ही गॉट ग्रेजुएटेड इन एनिमेशन, सो इसके लिए उसको ये सब करके लेना था। उसने एफर्ट्स लिए कि पाजी मैं हर एक का देख के लूंगा। वी शॉर्टलिस्टेड 40 पीपल को हम लोग ने एक टास्क दे दिया ऑलरेडी। हर एक को एक हम लोग ने क्रिएटिव्स दे दिए कि ये क्रिएटिव के साथ आप क्या करके दे सकते हो ना, आपका बेस्ट बना के दे दो। 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन दे दिया। जिसका भी अच्छा रहेगा विल हायर देम। ये हमारा इंटर्नशिप था। इंटर्नशिप के लिए हमें उनको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दिए। बट बहुत सारे ऐसे लोग आते जो बूट कैंप के नीचे आके बोलते अरे यार मुझे जॉब चाहिए, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। तो मैंने एक बार, दिस इज समथिंग थोड़ा सा मेरे को फनी वे में मैंने उसको बोला कि वन ऑफ द गाय, मेरे को ना एक बंदा बहुत टाइम से स्पैम कर रहा है, 5 दिन से, अभी भी कर रहा था, कल उससे स्पैम करना बंद कर दिया। तो उसका ये था मेल, रुको मैं मेल पढ़ के दिखाता हूँ। एक्सपोज। या आई एम फाइन विद दैट। ठीक है, आई हैव रिसीव ऑलमोस्ट, मेरे को 200 से ज्यादा सेम मिला है, 200+। ठीक है, हेलो माय नेम इज डैश, माय एज इज 20 years old, आई एम लिविंग इन गुड़गांव हरियाणा, आई एम ए स्टूडेंट इन कॉलेज, आई एम ए 3-time state medalist and 2-time national, played in archery game, I have been following you since last 2 years, I am your biggest fan। जो कि झूठ बोल रहा है। मेरा पर्सनल फैन नहीं है, मेरे को पता है। इट इज माय ड्रीम to represent your organization for India in the future. Okay, respect. 1 year ago, I left my home to follow my dreams. Okay, I started doing normal job in Delhi from the reference of my friend. Started living there. 2 years ago, I had a dream to become a big freelancer, but my parents did not support this thing. Then my father got me involved in sports. Slowly, my interest in sports started increasing, and I chose archery sports. Okay. सो ये यहाँ पे अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, अपने ड्रीम के लिए घर छोड़ दिया, फिर पापा ने उसको स्पोर्ट्स में भी सपोर्ट किया। मेरे को लॉजिक समझा नहीं। उल्टा यूजुअली हर एक इंडियन पेरेंट स्पोर्ट्स पे सपोर्ट करता नहीं है। पेरेंट्स ने तो किया है, ठीक है। नाउ बड़ी बात है, बस एग्जैक्टली। So now he says my dream is to make my parents and godlike esports feel proud globally. Okay, my dream is to fulfill all my dreams. Okay, my dream is to fulfill all my dreams soon by joining godlike। मतलब इसका बंदे का ये बोलना है कि गॉडलाइक ज्वाइन करके इसके सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। सो घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ियां मिल जाएगी, क्रॉन्टल मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। So next he says is, I know you have a lot of emails in a day and I am sorry because you must have received
this mail many times. So देखो कितना courtesy रख के बोला कि मैं तेरे को spam कर रहा हूँ, अपने तेरे को मैं spam कर रहा हूँ मैं. So but please, if this email of mine reaches you, then please contact me. With your help, I will fulfill all my dreams. I know you will have some rules and regulations too, but take out some time and contact me once. I'll send you my contact details below. I'll be grateful. I'll wait for your response. 4 दिन तक मैंने इसको कुछ response नहीं दिया, because this is very absurd way to approach anybody. नाम भी ठीक है, no छोड़ रहा है। resume. नहीं. Yeah, it's not bringing any value. मैं एक चीज करूंगा, आप समझोगे कि देख पता नहीं मेरे को, बट मैं एक चीज करूंगा, उसका नाम का बहुत बड़ा हिंट है ऐसा. हाँ? ये क्या होता है? Bro, have you watched मिर्जापुर? हाँ, मिर्जापुर उसमें वापस देखनी पड़ेगी हाँ, पूरा मिर्जापुर. yes, please यहाँ देख पे वो लेना. scene डालूंगा अभी. हाँ. तो see, I want this, if this person, उसको मैं चाहता हूँ कि ये देखे कि मैंने तेरे बारे में क्या बोला है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, एंड दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच. आपका रेज्यूम तो है ही नहीं है ब्रो, आपका रेज्यूम है नहीं. फिर आई कॉल दिस पर्सन शांतनु के नंबर से. मैंने बोला कि मैं शांतनु बोल रहा हूँ. मैंने मेरा नाम नहीं लिया. तो मैंने बोला, मैं भाई क्यों स्पैम कर रहे हो आप ये बात कर रहे हो? बोला यस. तो उसने बोला आप गॉडलाइक से बात कर रहे हो क्या? मैंने बोला यस. बोला आपको जॉब चाहिए ना? बोलते हाँ मुझे जॉब चाहिए. बोला क्या कर, आपका एक्सपीरियंस क्या है? बोलता मैं 2 साल से गेम खेल रहा हूँ. बट क्या एक्सपीरियंस क्या है? 2 साल से गेम खेल रहा हूँ. बट काम क्या करोगे फिर? काम क्या करोगे आप? बोलते नहीं मुझे आर्चरी में जाना. मतलब तू चाहता है कि तू आर्चरी को रिप्रेजेंट करे गॉडलाइक में आके, और गॉडलाइक को प्राउड फील कराए. तब लॉजिक समझा नहीं मेरे को. बंदे को आर्चरी खेलनी है गॉडलाइक में ज्वाइन करके, एंड ही वांट्स टू फुलफिल ऑल हिज ड्रीम जस्ट बाय जॉइनिंग गॉडलाइक. मतलब इससे ज्यादा बुलशिट क्या हो सकता है? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? I think Kamalji, biggest problem right now in esports is कि लोगों को पता नहीं कि esports is not just like playing games. Bro, बहुत कुछ है. Production, Yes. creatives, बहुत ज्यादा है. roster itself, marketing. And even if it's playing games, right? It's not just that हाँ मैं दिन में खेलता हूँ. हाँ. वो you know anyone can do. मेरी anyone. मम्मी लूडो खेलती है. Bro, God. See, if your mom wants to join Godlike, you know, I hope she'll be able to fulfill all her dreams. Please, no, only this is for fun. Please, बुरा मत मानना. So yeah, I keep getting lot of such mails. And एक बंदे को तो हद ही हो गई, बोलता है कि मैं कुछ भी जॉब कर लूंगा. मैं उसको पूछा तूने पढ़ाई की है क्या की है? बोलते मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीकॉम की है. भाई पढ़ाई मैंने कितना, मेरे को लगा गैप वगैरह हो गया रहेगा, इसके लिए जॉब चाहिए होगी. बोलते मैंने अभी मतलब ये सेमेस्टर ही क्लियर करके मैंने, मतलब कितने ग्रेड्स आए. सो ही उसको मैं अच्छे डिस्टिंक्शन के पास हुआ है. ए से हुआ, ओ नहीं हुआ था, ए से, ए या बी हुआ था, विच इज स्टिल बहुत अच्छी बात है यार. यार ये रिजल्ट आपका डिसाइड तो नहीं करता, क्या बोलते हैं, यू नो, करियर. आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में भी पढ़ाई को लेके. फिर ना उसको मैं पूछा क्या जॉब करोगे? बोलता कुछ भी कर लूंगा. बोला गॉडलाइक एक वॉचमैन चाहिए, बनेगा तू? मैं सीरियसली उसको बोला कि वॉचमैन बनेगा? हाँ बन जाऊंगा. मैं उसको 2 गालियां दी पहले. मतलब तेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया है ये चीज के लिए कि आपको वॉचमैन बनना है. आपको वॉचमैन बनने के लिए आपका डेस्टिनी. मैं उसको सीधा बोला, मैं देख भाई तू एक हमारा अंधा फैन है जिसको अभी तक रास्ता किसी ने दिखाया नहीं है. तू जाग जा जल्दी से, बिकॉज तू तेरा फ्यूचर स्टेक पे डाल रहा है ये सब चीजें कुछ भी अनसंड बातें करके, या फिर मुझे इंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है. सिंपल. ऐसा मैं इंप्रेस नहीं होने वाला हूँ. उल्टा तेरे को जो ज्यादा गालियां दूंगा मैं. तेरे माँ बाप ने तेरे को ये नहीं सिखाया, पढ़ाई नहीं करवाई कि तेरे को किसी के यहाँ पे जाके कुछ भी काम करे, या वॉचमैन बने, या तेरे को कुछ भी बनाओ. तू अपने आप को वैल्यू क्रिएट कर. तू अंडर वैल्यू होके आ रहा है ना. मैं अंडर वैल्यू बंदे को मैं कभी वैल्यू नहीं बना सकता, ना गॉडलाइक बना सकता है, ना कोई भी नहीं बना सकता किसी का भी. उसको अच्छे से समझाया. एंड दिस गाय वाज द सेम पर्सन हु केम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान. अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था उसने. एंड ही ट्रैवल्ड फ्रॉम राजस्थान, एंड मैंने उसको, वो जाने को तैयार नहीं था, 12 घंटे बूट कैंप के बाहर रुका था. एंड मेरे को मैं
चाहता था कि उसको मैं सुनाऊं, बट ही वाज एट ए स्टेज कि मतलब मैंने चल ठीक है उसको अच्छे से समझाते। उसकी टिकट की मैंने, उसका नंबर लिया, मतलब भाई तू घर पहुंच पहले, बात की बाद में देखते। And that's so sweet सब, यार। एक बस moment में मुझे इससे लगा ज्यादा था मेरे को कुछ कि नहीं बोलना। क्या चल रहा है, रूडीज का ऑडिशन चल रहा है, क्या चल रहा है। हाँ यार, हाँ यार, ऐसा लगता है कि लाइक हम लोग को इमोशनल होके हम लोग उनकी कुछ भी विश कर देंगे यार, ऐसा नहीं होता है। You need to हम fulfill something. इवन वी आर वन ऑफ देम। आवाज आया कुछ, आवाज आया जोर से कुछ? हाँ नहीं 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 मतलब नहीं नहीं ना, नहीं, ठीक है ठीक। हाँ नहीं क्योंकि वो अभी जस्ट गाड़ी गई ना, अरे जॉनी कोई गया अपनी मस्टैंग लेके, तो वो आवाज जोर के मेरे को लगा माइक ने कैच किया फिर। नहीं नहीं no, चल। no. तो या तो ऐसे ना मैसेजेस आते रहते हैं, एंड कभी कभी बुरा लगता है कि यार हम कुछ कर नहीं सकते, बट अभी हम लोग भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा बना नहीं पा रहे, लाइक Mhm. गेम ही नहीं है यार, मेजर गेम नहीं है हमारा, हमारा यूएसपी गेम नहीं है जिससे हमें लगता है कि रेवेन्यू आ सकता है, हम और अपनी टीम को बड़ी कर सकते हैं। हम्म। क्या कर नहीं सही सकते हैं? बात है कमलजीत, हमारी जैसे हम भी अभी मतलब फेयरली न्यू ईयर, वी हैव बीन ऑपरेशनल फॉर 2 years। Mhm. सो जब भी कोई मुझे भी डीएम आता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि हाँ पैसे बना सकते हो, गेम खेल सकते हो, हाँ इसमें भी पैसे बन जाएंगे, जॉब दे दो। हाई टूर्नामेंट्स का पेज है, मेरा प्राइवेट अकाउंट है, उस पे वो लोग फॉलो करके ना मुझे डीएम करने की कोशिश करेंगे, आते रहते हैं सर जॉब दे दो जॉब दे दो। मैं जब भी किसी के एक्चुअली बैठता हूँ, उनसे एक चीज पूछता हूँ, देखो हाई टूर्नामेंट्स ऑलरेडी काफी स्टैब्लिश्ड है, ऑपरेशन हमारे सेट है, तुम आओगे, तुम एडिशनल क्या डाल सकते हो क्या जो लेके हम आओ? ऑलरेडी कर रहे हैं उस What पे। can you bring to the table? दैट्स व्हेन यू आर मेकिंग एग्जैक्टली। समथिंग हैपन। नहीं तो फिर क्या मतलब है, फिर तुम मेरे लोग कर ही रहे ना, एक और क्यों बढ़ाऊं। मार्केट में ऐसे 50 लोग पड़े हैं यार, Mhm. अरे अपन 50 की से ज्यादा लोग हैं, टू बी इंडिया। ऑनेस्ट। 50 से ज्यादा लोग पड़े हुए हैं, एंड लोगों को ना बहुत ही इजी वे में जॉब चाहिए, क्योंकि सबको लगता है यार गेम्स है ना, जॉब तो मिल ही जाएगी। Mhm. अभी 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 नहीं है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है ऐसा। अब तो अब एक स्ट्रक्चर बन चुका है, तो अब एक स्टैंडर्ड सिस्टम बदल बन गया ना, हम्म। बिल्कुल. Yes. So yeah, Kamaljeet, now I would humbly, I'm so happy कि आप आए हमारे पॉडकास्ट पे। Thank you I guys, think thank you this is so just the much. beginning, ये बस पहला पॉडकास्ट है, we'll keep having you every year। कि अगले साल क्या हुआ, पूरे साल में क्या हुआ, कुछ बताइए हमारे लोगों को, और फन स्टोरीज बताइए, और इंस्पायरिंग स्टोरी बताइए। But yeah, I think this is one of the most fun podcasts I've had। Mhm. You know, we have Thank had you guys. Thank you so much for having me. And like, I really wish both of you a great success. And I really want somewhere down the line, I can see your future. That like, you guys have already hosted a very big LAN event, and we as God like we are playing your LAN, and we guys are having fun and like, making money. Simple. All the best for this. for sure it's happening soon। and उस टाइम सबको फ्लाई करके लाएंगे हम दुबई, दुबई नहीं तो एम्स्टरडेम में ही करने वाले हैं। एम्स्टरडेम, और ब्रो, कुछ नहीं होगा। एम्स्टरडेम चलते। एम्स्टरडेम ले आओ, मैं खुशी खुशी आऊंगा फिर। वहां पर अपन का प्रॉपर्ली वापस पॉडकास्ट बनाएंगे, हाई टॉक्स। that we बिल्कुल are doing बिल्कुल। too। But yeah, thank you so much, Kamaljeet, for joining us, for coming on, taking out the time, and like letting everyone know कि हाँ what Godlike is doing and क्या आगे future में है, how they can enter the market। That is, I think, the most inspiring thing that can be done at the moment। अभी education की बहुत requirement है esports में, and that is what like I pretty much derive from the entire call today also। I also learned a lot। So yeah, thank you so much। We couldn't have had asked for anyone better। So we'll see थैंक you यू soon। गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू सून गाइस।